नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से रमादा होटल से मुखातिब है। कराची में यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, डेल्फा, जो 17 से 19 अप्रैल तक एक्सपो सेंटर कराची में होगा। डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज़ एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़, इन तमाम को एक अम्ब्रेला तले लेकर हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, मुल्क की लीडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, और उनके साथ DCFA पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों सेक्टर, ये दोनों ऐसी कंपनीज़ हैं कि जो इस डेल्फा को देख रही हैं। लेकिन अब इनके साथ बलूचिस्तान की हुकूमत भी साथ खड़ी हुई है, उनका लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह सिंध का लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट भी जो है वो इस डेल्फा के साथ खड़ा हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की भी एक ख़ास तवज्जो दिखाई देती है इस जानिब, वो भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम सूबाई हुकूमतें वो भी एक ख़ास फोकस करती हुई दिखाई दे रही हैं। नवंबर में बलूचिस्तान हुकूमत ने लाइव स्टॉक एक्सपो ऑर्गेनाइज़ की थी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद दूसरी लाइव स्टॉक एक्सपो हैदराबाद में सिंध लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ की थी। अब डेल्फा होने जा रहा है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तो मिल ही गई हैं, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे फार्मर्स, क्योंकि ये एक्सपो है, ये डेल्फा है, फार्मर्स का डेल्फा है, और हमारे मुल्क में जितनी बड़ी तादाद दिखाई देती है एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो तमाम के तमाम जब जमा होंगे तो फिर तरक्की हमारा मुल्क करेगा। क्या कुछ होने जा रहा है इस इवेंट में, तो आइए आपको दिखाते हैं। Now I would like to welcome here on the rostrum our MD Badr Expo Solutions, Mr. Zuhair Nasir, for the welcome address. We are privileged to welcome you all here. Especially, we would like to welcome to our honorable chief guest, Mr. Ijaz Maisar Saab, and all the esteemed guests today at the soft launch ceremony, Delpha Expo and Seminar, which will be held from 17 to 19 April 2020. Delpha is the most prestigious event to be held first time in Pakistan, followed by the vision of the Prime Minister Imran Khan, as the benchmark of excellence and the gateway to the country economic corridors in the above sectors. This is a joint venture initiative of Badr Expo Solution and DCFA Pakistan, while the expo is being co-organized with the government of Balochistan and the Sindh provinces through their livestock department. Besides, country-wide participation of livestock owners and dairy farmers and growers from the above sectors, Delpha is aimed to highlight, promote, and invite participation in this most vital sector, which acts as the key driver of our current and future investment decisions and towards economic growth of the country. Badr Expo Solution, a prominent brand in event management with above 1,000 trade shows and exhibition in over 300 national and international events, all of the sizes and credits. Badr Expo is headed towards taking Pakistani industry to the height they have never been before. With similar zeal, our goal is to keep steering to uplift the image of Pakistan industry
in Pakistan through Delpha as a concurring event, inshallah. Lastly, we sincerely extend our gratitude to the DCFA Pakistan, Livestock and Fisheries Department, Government of Sindh, Livestock and Dairy Development Department, Government of Balochistan, and Sindh Enterprises Development Fund, exhibiting companies and all the farmers for standing with us in collaboration, and our all esteemed supporting partners that have joined hands together to make this event successful. Thank you very much. सबसे वाइटल चीज़ है डेल्फा. डेल्फा इज़ द एग्जीबिशन एंड सेमिनार जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 17 to 19 ऑफ अप्रैल एट कराची एक्सपो सेंटर. उसके हवाले से एक प्रेजेंटेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब हारिस अली मिठानी साहब से. मेरी कोशिश होगी कि आज हम अपने जितने भी गेस्ट हैं उनको डेल्फा के हवाले से एक कंप्लीट ब्रीफिंग फराहम करें एक प्रेजेंटेशन के थ्रू. और इसके अलावा भी इस इवेंट के बाद, इस प्रेजेंटेशन के बाद भी आपके जो भी इस हवाले से आपकी इंफॉर्मेशंस आपको रिक्वायर्ड होंगी तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर टीम मौजूद है. तो स्टार्ट लेते हैं प्रेजेंटेशन से. डेल्फा 17 to 19 अप्रैल 2020 को मुनक्किद होने जा रहा है. डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी. बेसिकली ये डेल्फा की जो है वो एक एब्रीविएशन है जिसको हम मुश्तरका इन सारे सेक्टर्स को करते हैं तो डेल्फा बनता है. तो इसीलिए ये डेल्फा एक्सपो जो है वो इस अंदाज से जो है वो डेल्फा के नाम के साथ मंसूब है. प्रेजेंटेशन का सबसे बेसिक पार्ट वाई Countdown begins. 5, 4, 3, 2, 1. Get ready for the massive event in town. Delpha Cattle Show 2020. 17th, 18th, 19th of April 2020 at Expo Center, Karachi. Organized by DCFA Pakistan and Badr Expo Solutions. Co-organizers Livestock and Dairy Development Department, Government of Balochistan, Livestock and Fisheries Department, Government of Sindh. Media Coordinator, Parrot Studio. Delpha Cattle Show 2020. अस्सलामुअलैकुम, मैं आमिर उस्मान, CEO शाकरान डेयरी एंड कैटल फार्म पार्टिसिपेट कर रहा हूँ डेल्फा में एज ए प्लैटिनम स्पॉन्सर. इस मौके पर मैं इनवाइट करता हूँ अपने मोअज़्ज़िज़ कस्टमर को कि वो आएँ और डेल्फा कैटल शो में शाकरान के स्टॉल को विज़िट करें और डेल्फा को कामयाब बनाएं. पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैटल शो डेल्फा कैटल शो. Delpha Cattle Show 2020. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूं आदम शुरती कैटल फार्म से. मैं आज अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स और कुर्बानी के शौकीन को एक मैसेज देना चाहता हूं जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कैटल शो डेल्फा एक्सपो और डेल्फा कैटल शो के हवाले से, जिस पे सुरती कैटल फार्म एज अ प्लैटिनियम स्पॉन्सर पार्टिसिपेट कर रहा है.
मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स और कुर्बानी के शौकीन को मैं दावत देता हूँ कि वो हमारे स्टॉल पर 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक तशरीफ़ लाइए, जिस पर हम अपनी 2020 की कलेक्शन को एक्सपोज करेंगे। मार्क द डेट्स इन योर कैलेंडर्स। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैटल शो, डेल्फा कैटल शो। Delpha Cattle Show 2020. मैं इस डेल्फा एक्सपो में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि माशाल्लाह डेयरी एंड कैटल फार्म गोल्ड स्पॉन्सर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है जिसे मैं अपना लिए बाइस फ़ख्र समझता हूँ। और मैं तमाम अपने क्लाइंट्स और जितने भी इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शौकीन हजरात हैं वो तमाम इसमें डेल्फा एक्सपो में शिरकत करें और ख़ास तौर पर हमारे स्टॉल पर तशरीफ़ लाएँ, जिसमें इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया की बहुत ही गिरां कदर और नादिर और नायाब ब्रीड्स देखने को मिलेंगी। और मैं इस हवाले से आपकी आमद पर आपको सबको वेलकम करता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैटल शो, डेल्फा कैटल शो। Delpha Cattle Show 2020. मैं हूं फरहान रईस फाइन कैटल फार्म से और मैं आ रहा हूं डेल्फा कैटल शो 2020 में एज अ गोल्ड स्पॉन्सर। मैं अपने तमाम फॉलोअर्स को डेल्फा कैटल शो 2020 में इनवाइट करता हूं कि वो आएँ मेरे स्टॉल पे और इस इवेंट को कामयाब बनाएं। सो डोंट मिस दिस मेगा इवेंट फ्रॉम 17 to 19 अप्रैल 2020 एट कराची एक्सपो सेंटर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैटल शो, डेल्फा कैटल शो। Delpha Cattle Show 2020. मैं अरसल अशफाक दोचकी, ऑनर ऑफ फेयर ऑर्गेनिक कैटल फार्म। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेल्फा कैटल शो होने जा रहा है और मैं आ रहा हूँ एज अ गोल्ड स्पॉन्सर। हम अपने तमाम फेयर ऑर्गेनिक कैटल के फॉलोअर्स और जितने भी इस फील्ड से शौक़ रखते हैं उन सबको इनवाइट करता हूँ 17th, 18th, 19th अप्रैल को कराची एक्सपो सेंटर में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैटल शो, डेल्फा कैटल शो। Delpha Cattle Show 2020. मैं आमिर पाकल ट्रिपल ए कैटल फार्म से डेल्फा 2020 में गोल्ड स्पॉन्सर आ रहा हूँ। ट्रिपल ए कैटल फार्म के तमाम फॉलोअर्स को मैं डेल्फा 2020 में अपने स्टॉल पे आने की दावत देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हजरात आके हमारे शो को कामयाब बनाएंगे। तो आना मत भूलिएगा 17 से 19 अप्रैल एक्सपो सेंटर कराची में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैटल शो, डेल्फा कैटल शो। Delpha Cattle Show 2020. मैं जमील मेमन सिंधेरी कैटल फार्म का ओनर। डेल्फा कैटल शो 2020 होने जा रहा है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कैटल फार्मर से ईद-उल-जुहा के जानवर पालने वालों से कि आप भरपूर शिरकत करके कामयाब बनाएं उसे। तो आना मत भूलिएगा 17 से 19 अप्रैल कराची एक्सपो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैटल शो, डेल्फा कैटल शो। Delpha Cattle Show 2020. तो जब हमने एक प्लान किया कि हमने एक ऐसा एग्जीबिशन करना है और ऐसे एग्जीबिशन की ज़रूरत है, आज इन तमाम सेक्टर्स में आप देख लें, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे लाइव स्टॉक सेक्टर हो, चाहे फिशरीज़ हो, ये तमाम सेक्टर्स जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है गैर मुस्तहकम पोजीशन पर है। हम समझते हैं कि इसके अंदर इन सारे सेक्टर्स के ऊपर जितना पोटेंशियल मौजूद है, इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उस अंदाज से हमारे यहाँ पर, हमारे मुल्क में ना हुकूमती सतह पर और ना प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसी जो है वो स्कीम या कोई भी ऐसे जो है वो इवेंट बहुत कम दिखने को मिल रहे हैं या इस पर तवज्जो बहुत कम है, जिससे हम ये समझते हैं कि ये बेसिक बैकबोन है पाकिस्तान की। अगरचे ये सारे सेक्टर्स जो है ये तरक्की करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एक DCFA पाकिस्तान का जो है एक मंशूर है, जो एक मकसद है, खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल फार्मर, खुशहाल पाकिस्तान, तो वो इसी तरह मुकम्मल होता है जब हम डेल्फा के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ें। डेफिनेटली जब हम किसी बहुत ख़ास मंजिल की तरफ गामजन होते हैं तो हमारी इंटेंशंस ये होती हैं कि आया वो कौन सी एयरलाइन है जिसमें हम सफ़र करें। तो DCFA पाकिस्तान जो है वो इस अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव को लेके जो डेल्फा के साथ मंसूब है
उस एयरलाइन में सफ़र कर रही है जो 2001 से इवेंट इंडस्ट्री के अंदर अपना बेहतरीन पार्ट प्ले करता रहा है, जिन्होंने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े और जो है वो सबसे ख़ास जितने इवेंट्स जो होते हैं, जिनके मैं एक दो के नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि आइडियाज़ हो गया, या जो है वो इसके अलावा और बहुत सारे पाकिस्तान नेवी के जितने बड़े इवेंट्स हैं वो हो गए, या अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ पाकिस्तान और तुर्की का एक बड़ा अहम MOU साइनिंग था, जिसके अंदर बदर एक्सपो सोल्यूशन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो हम ये इवेंट एक जॉइंट वेंचर में मिल के उनके साथ DCFA पाकिस्तान और बदर एक्सपो इस डेल्फा के कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है, और जो है हम इस इवेंट को आपकी तालियों के साथ बदर एक्सपो सोल्यूशंस के साथ करने के लिए जा रहे हैं। तो बदर एक्सपो सोल्यूशन जिसके हवाले से जो है वो हमारे बहुत सारे दोस्त बखूबी वाकिफ़ हैं, और जो हमारे फार्मर्स या कुछ ऐसे दोस्त जो नहीं जानते थे, उनके लिए मैंने ये बताया कि हम जब किसी भी ऐसी इवेंट को या किसी भी जिसकी हम एग्जीक्यूशन, जिसके अंदर हम प्लान, जिसके अंदर हम आइडियाज़, उसके अंदर हम प्रोफेशनलिज्म चाहते हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि एक जो है वो हमारा जो एक मैसेज है वो ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत मजबूत अंदाज से फैले जाए, और हमारे साथ जो टीम हो वो एक प्रोफेशनल टीम हो। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई और नाम नहीं था, और DCFA पाकिस्तान डेल्फा के सफ़र को बदर एक्सपो सोल्यूशन के साथ करने जा रही है। नेक्स्ट DCFA जो कि ऑर्गेनाइज़र है बदर एक्सपो के साथ, ये दोनों ऑर्गेनाइजर्स हैं। DCFA के हवाले से तकरीबन DCFA के मेंबर्स जानते हैं, डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन आज अल्हम्दुलिल्लाह DCFA को तकरीबन कुछ 3 साल का अरसा हो चुका है, जो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर रही है। हम अभी बिगनिंग स्टेज पे खुद को समझते हैं, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव DCFA मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि हमारा मकसद DCFA को पूरे पाकिस्तान में फ़ाल करना है, फार्मर्स की बेहतर और जो है वो एक मुनज़्ज़म और फ़ाल अंदाज में नुमाइंदगी करना है। और हम समझते हैं कि ये डेल्फा एक्सपो जो है वो इस वक्त इस नेशन के लिए इस वक्त की भी ज़रूरत थी, और हमारे फार्मर्स की जो है वो एक आवाज़ थ्रू DCFA और DCFA के इमेज अपलिफ्ट करने के लिए भी मैं समझता हूँ इस डेल्फा की ज़रूरत थी। ये भी एक वो रीज़न है कि हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए अपने बेहतर अंदाज से अपने फार्मर्स तक पहुँचें, इस इंडस्ट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ को, इसके अंदर जितने इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम फार्मर्स जो इस वक्त एसोसिएट नहीं हैं DCFA के साथ, वो भी DCFA का हिस्सा बने, उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिले और उनके साथ हमारा इंट्रोडक्शन हो। उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। आखिर में एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। For the speech and of course for his views, Dr. Nazir Hussain Kolodo Saab, DG, Sindh Institute of Animal Health, Karachi. फुल सपोर्ट में हम डेल्फा और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होगी तो जो डिपार्टमेंट है लाइव स्टॉक एंड फिशेज डिपार्टमेंट और हमारा इंस्टीट्यूट सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ और डायरेक्टोरेट्स सारी हम लाइव स्टॉक की प्रमोशन के लिए हम साथ हैं। और मुझे कभी यकीन है ख़ास तौर पे जो ज़ोहैर नसीर साहब हैं, मिठानी साहब हैं और शाकिर उमर साहब की जो लीडरशिप है, जो प्राइवेट सेक्टर में ये धुआंधार तरीके से आए हैं और माशाल्लाह इसको लीड कर रहे हैं, और जितने भी ये डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज़ के सेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको सबको लेके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट साबित होगा एक प्राइवेट सेक्टर में और बिज़नेस टू बिज़नेस वाले मामलात में। मैं क्लोजली इसको देख रहा हूँ और मुझे बहुत उम्मीद है, और हम ना सिर्फ इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल्स, लेकिन मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जो शायद यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ कि काउंसिल जनरल्स और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं उनकी भी बड़ी इंटरेस्ट है इस मामले पे, और उसमें भी हम बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस मामले पे देख रहे हैं। 2-4 चीज़ें यहाँ पे कम थी, ख़ास तौर पे जो सेमिनार की बात है वो कुछ तो ये सेमिनार हैं जिनकी बिज़नेस टू बिज़नेस वाली बात थी, कुछ टेक्निकल सेमिनार होंगे जिसके ऊपर डेयरी और लाइव स्टॉक के ऊपर टेक्निकल सेमिनार, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, और जो ख़ास तौर पे जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं या डेयरी फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर फार्मर हैं, फिशरीज़ हैं,
उनकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उस हिसाब से, और उनके जो डिजीज़ हैं या उनकी मैनेजमेंट है, उनकी हाउसिंग है, उसकी न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से उस पर बहुत ज़्यादा बात होगी। और वो इंटरेक्टिव किस्म के सेमिनार होंगे जिसमें मैं समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म से मैं दावत देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो इस सेक्टर से इन्वॉल्व हैं वो सब आएँ और उससे मुस्तफ़ीद हों। शायद एक जगह पे इतने सारे रिसोर्स पर्सन, इतनी सारी नॉलेज शायद आपको ना मिल पाए, तो इस वजह से, और वो कराची जैसे शहर में, मेट्रोपॉलिटन में जब आपको इतनी सारे लोग एक जगह पे जमा हो रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन मौका होगा हर एक के लिए, ना सिर्फ फार्मर्स के लिए लेकिन बिज़नेस वाले बंदों के लिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, इसके अलावा कंज्यूमर के लिए भी, और एक तरह से जो नए लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी। तो सबको हमारी तरफ से, क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, को ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के, तो ताकि इसमें भरपूर अपना हिस्सा डालें और ज़रूर आएँ। 17 to 19 अप्रैल इसमें ज़रूर शिरकत करें और भरपूर अंदाज से इसमें शिरकत करें। हमारी नेक तमन्ना और दुआ डेल्फा के साथ है और इंशाअल्लाह ये हमेशा के लिए कायम और दायम रहे और हर साल ये इवेंट होता रहेगा। इस दुआ के साथ कि साईं सदाई करी मथे सिंसकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। And now I would like to request the chief guest of this ceremony, एजाज अहमद मेहसर साहब, सेक्रेटरी लाइवस्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ डेल्फा के इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को कि जिस तरह डॉक्टर नज़ीर ने बताया है कि जो एंट्री हुई है बहुत धुआंधार एंट्री हुई है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने ये प्लान किया है तो ये हमें करके भी दिखाएंगे कि ये एक इवेंट ऐसा होगा जो कि लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए एक संग मील साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ जो मेरा काम है, जो इस डिपार्टमेंट का काम है, उसके बारे में आपको बता दूं कि लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट का जो लाइफ स्टॉक विंग है जिसमें पोल्ट्री भी शामिल है, उसमें बेसिकली वी आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द हेल्थ केयर ऑफ द एंटायर लाइफ स्टॉक इन द प्रोविंस। अगरचे हमारा लाइफ स्टॉक सेहतमंद होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, और अगरचे वो सेहतयाब नहीं होगा तो न सिर्फ यह है कि इसकी प्रोडक्ट भी ख़राब होगी बल्कि यह कि लोगों का जो लाइवलीहुड है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होगा। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम अपने लाइफ स्टॉक की सेहत का ख्याल रखें, और जब हम इस पे गौर करेंगे तो हमारा प्राइमरी रोल जो बनता है वो होता है कि हम अपने जानवरों को वैक्सीन करें। जब हम उनको प्रॉपर वैक्सीन करेंगे और हर सीज़न में उनकी वैक्सीनेशन होती रहेगी तो वो उनको बीमारियां नहीं होंगी, तो उनको प्रिवेंट जो है क्यूरेटिव हेल्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्टफॉल ये है क्योंकि हमारी बजट इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम 100% तो कवरेज दे नहीं सकते, लेकिन हम अगर 20 to 30% कवरेज दे पाते हैं तो उससे भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है लाइफ स्टॉक ओनर्स की। तो पिछले साल से हमने अपना फोकस चेंज किया। पहले हम वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन सिंस लास्ट ईयर हम अपने वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है, और अल्टीमेटली आवर एम इज़ कि हम 80% जो अपनी रिसोर्सेज हैं वो वैक्सीनेशन की तरफ डाइवर्ट कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जानवरों में बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां ना होने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी। लाइफ स्टॉक की इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता भी होगा, मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़, और वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो जब हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो पहले ही एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक कई ऐसे जगहों पे इनको एक ही सेक्टर माना जाता है, और एक ही सेक्टर था। हमारा भी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर से 2003 में से जो है ना वो निकला था, पहले उसका पार्ट था। अब हम अगर बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का अपना क्या रेशो है, वैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो इनकी बिटवीन 20 to 23% हिस्टोरिकली रही है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसमें एग्रीकल्चर का जो है वो रोल 40% है और 60% जो है वो लाइफ स्टॉक का है। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर की है तो उसमें फिर लाइफ स्टॉक का ज़्यादा रोल आता है।
और फिर हम बात करते हैं कि इतना पोटेंशियल इसमें है, लेकिन पोटेंशियल के बावजूद हम इस सेक्टर में कर क्या रहे हैं। ये एक बुनियादी मसला है जिसको न सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, बल्कि इस सेक्टर से जुड़े हुए सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग, इन सब ने सोचना है इसके ऊपर कि पोटेंशियल की बात तो अपनी जगह, लेकिन इस पोटेंशियल को हार्नेस कैसे करें। इश्यूज़ जो हमारे लाइफ स्टॉक में हैं उससे सबसे बड़ा जो है वो तो डिजीज़ हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़, उसको हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी बहुत चाहिए। हम ये भी सोच रहे हैं कि हम किस तरह हम अपनी पूरे पाकिस्तान को, और ज़ाहिर है मेरा रोल तो प्रोविंस ऑफ सिंध में, तो हम कैसे अपना FMD फ्री जोन्स बनाएं जिसमें फिर जो है हमारा जो है वो एक्सपोर्टेबिलिटी जो हमारे लाइफ स्टॉक की है उससे वो बढ़ जाए। और हम इस सिलसिले में जो है वो एक कोशिश ये कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाह रहे हैं यहाँ सिंध में, और वो अगर हमने बना लिया तो हमारी ये उसकी जो कैपेसिटी हम सोच रहे हैं वो यूँ है कि हम न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की पूरी FMD वैक्सीन की नीड पूरी कर सकेंगे, बट वी विल आल्सो एक्सपोर्ट इट टू नेबरिंग कंट्रीज़ विच इंक्लूड्स अफ़गानिस्तान एज वेल। तो ये अगर हमने कर लिया तो एक बहुत बड़ा मसला हमारा जो प्रोडक्टिविटी का वो हल हो जाएगा, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो तकरीबन हम वैक्सीन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज न सिर्फ हम बचा सकेंगे, बट इफ़ वी एक्सपोर्ट इट टू आवर नेबरिंग कंट्रीज़ तो हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न भी कर सकेंगे। दूसरा मसला है ब्रीड्स का। जो हमारी ब्रीड्स हैं, अनफॉर्चुनेटली 80s के बाद एक गवर्नेंस का क्राइसिस आया जो कि मैं नहीं समझता कि अभी तक हल हुआ है, चल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है और गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है। तो ब्रीड्स हमारी जो हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट हो गई हैं। नॉन डिस्क्रिप्ट से मुराद ये है कि जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जाते हैं तो वी डू नॉट हैव दिस रिजीम के जिसमें हम इंश्योर कर सकें कि प्रॉपर सीमेन इंपोर्ट भी हो रहे हैं और वो उसी ब्रीड में ही जो है ना वो इंसेमिनेट हो रहे हैं। हमारे पास ब्रीडिंग अथॉरिटी भी नहीं थी, वो हमने लास्ट ईयर इस्टेब्लिश की। तो हम ये भी एक प्लान बना रहे हैं कि जो हमारा नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है उसके लिए हम क्या करें कि उनकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाए, मिल्किंग कैपेसिटी उनकी बढ़े। तो उसमें हमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हमने प्लान ज़रूर बना लिया है। वी आर निगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट, और हमें जहाँ कहीं से लोन्स भी मिल रहे हैं या ग्रांट्स भी मिल रही हैं तो हम उनको इस तरह रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी ब्रीड्स को इम्प्रूव कर सकें। वंस आप ब्रीड्स आर इम्प्रूव्ड तो आप ये सोच लें कि जो आप जिस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, एंड इट वुड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। तो ब्रीड्स जो हैं हमारी इस पीरियड में बहुत बुरी तरह से जो है ना वो हमारे व्हाट आई सेड जो कम्युनिटी हमारी वेटरनरी सर्विसेज ब्रीड्स हमारी जो हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट हो गई हैं। नॉन डिस्क्रिप्ट से मुराद ये है कि जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जाते हैं तो वी डू नॉट हैव दिस रिजीम के जिसमें हम इंश्योर कर सकें कि प्रॉपर सीमेन इंपोर्ट भी हो रहे हैं और वो उसी ब्रीड में ही जो है ना वो इंसेमिनेट हो रहे हैं। हमारे पास ब्रीडिंग अथॉरिटी भी नहीं थी, वो हमने लास्ट ईयर इस्टेब्लिश की। तो हम ये भी एक प्लान बना रहे हैं कि जो हमारा नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल है उसके लिए हम क्या करें कि उनकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाए, मिल्किंग कैपेसिटी उनकी बढ़े। तो उसमें हमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हमने प्लान ज़रूर बना लिया है। वी आर निगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट, और हमें जहाँ कहीं से लोन्स भी मिल रहे हैं या ग्रांट्स भी मिल रही हैं तो हम उनको इस तरह रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी ब्रीड्स को इम्प्रूव कर सकें। वंस आप ब्रीड्स आर इम्प्रूव्ड तो आप ये सोच लें कि जो आप जिस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, एंड इट वुड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। इस सेक्टर को ओनरशिप का इशू ज़रूर रहा है, और इस ओनरशिप क्रिएट करने के लिए पिछले 1-1.5 साल से लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट इज़ स्ट्राइविंग इट्स बेस्ट टू सेंसिटाइज पीपल, नॉट ओनली the private stakeholders but also in the government, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसकी ओनरशिप का कुछ इशू नज़र आ रहा है। तो इस सिलसिले में हमने इस फरवरी में एक सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया। इन्हीं लाइंस पे था ये जो डेल्फा की हमें बात बताई जा रही है। वो एक इवेंट हमने इसलिए किया क्योंकि वो एक ओनरशिप
क्रिएट कराने हमारा मकसद था। ओनरशिप यूँ क्रिएट होनी है कि हमारे पास ब्रीड्स कितनी हैं और वो जनरल जहाँ लोग जो है अपने पास जो रख के बैठे हुए हैं ब्रीड, उनकी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है और जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनकी क्या जो है कैपेसिटी है, उनको बेसिकली शो ऑफ करना था, टू टेल पीपल दैट इफ़ यू गो फॉर दिस ब्रीड तो आपको किस तरह फ़ायदा हो सकता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा कामयाब भी हुआ और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी आए और आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोग आए होंगे, लेकिन हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब ज़रूर हुए कि लोगों को बता सके कि ना सिर्फ पोटेंशियल बट इसको पोटेंशियल को हार्नेस किस तरह किया जा सकता है। वो हमारी जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को अगर आगे लाने के लिए अगर डल्फा ये अपना ये प्रोग्राम लेके आया है तो मैं उनको फुली सपोर्ट भी करता हूँ। हम उनके साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं और हम इनको टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। इस तरह के प्रोग्राम रेगुलरली होते रहें। इस तरह ये होगा कि हमारे पास फीडबैक ये है कि जब हमने ये अपना इवेंट किया था तो उसके बाद बहुत सारे हमारे पास क्वेरीज आना शुरू हुई। पीपल गॉट इंटरेस्टेड इन दिस सेक्टर एंड दे आर आस्किंग कि वो किस तरह की ब्रीड्स जो है ना वो कहाँ से वो हासिल कर सकते हैं और हम उनको क्या टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। कंबाइन विद ऑल दीज थिंग्स मेरा ये मानना है कि लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज सेक्टर पाकिस्तान में वो वाहिद सेक्टर है जिसको अगर आप पिछले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की नज़र में भी देखेंगे तो ये वाहिद सेक्टर था जिसने आउट परफॉर्म किया अपने जो है वो एक्सपेक्टेड फिगर ऑफ ग्रोथ को। इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो 3.8% ग्रो करना था लेकिन इट ग्रू बाय 4%। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग है। इससे ये पता ज़रूर लगता है कि लोगों का अपना इसमें इंटरेस्ट है और अगर ये हमारी कोशिशें जारी रहीं तो जब जहाँ ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वहाँ इनकी जो वैल्यू चेन है उसको सपोर्ट करने में हमें डल्फा जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और उसमें जो मिसिंग चीज़ है वैल्यू एडिशन और वैल्यू चेन वो मिसिंग लिंक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैं डल्फा के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ और मेरी उम्मीद है कि उनका जो ये प्रोग्राम है वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल साबित होगा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे बुलाया एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। Last but not the least, for the vote of thanks, I would request Shakir Umar Gujjar, President DCFA Pakistan. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तमाम तर गुफ्तगू तो आपसे हारिस अली मिठानी, डॉक्टर नज़ीर कल्होड़ो, फिर एजाज़ अली महसर साहब ने तमाम चीज़ों को वो कहते हैं कूजे को मैं समंदर को समो दिया। तो बात यह है कि मैं आप लोगों से एक चीज़ की शिकायत करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मेरे फार्मर भाई कंपनीज तमाम मौजूद है, यहाँ तालियों की गूंज नहीं है। तो देखें ये आप लोगों का हौसला होता है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सेक्रेटरी लाइव स्टॉक सिंध के, उन्होंने इस अहम इवेंट को रौनक बख्शी। जनाब खैर मोहम्मद साहब सेक्रेटरी लाइव स्टॉक बलूचिस्तान साहब ने मेहमान भेजे हैं हमारे लिए जो हमारे को ऑर्गेनाइज़र हैं, तो बहुत शुक्रिया सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। बहुत शुक्रिया PVMA का मोहतरम जनाब जाहिद अली चाचर साहब जो हमारे बाजू बने और हमारे हौसलों को बुलंद किया। और बहुत शुक्रिया जनाब नज़ीर अहमद कल्होड़ो साहब का, उनके अल्फाज हमारे लिए एक हौसला है, आगे बढ़ने की उम्मीद है। और जिस अंदाज में उन्होंने इस धुआंधार एंट्री का जिक्र किया वो सबके लिए एक समझ ले एक मशअले राह है और आगे बढ़ने का हौसला है। तो मैं बता दूं आपको तमाम मेरे कैटल फार्मर्स भाई और तमाम इंडस्ट्री के अहम लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आप सब ये जानते हैं कि शाकिर उमर गुजर ना जाने कहाँ से आया और एक डेयरी सेक्टर का फिगर बन गया। मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं तो तालियां बजाएं। तो बात यह है
शाकिर उमर गुजर कुछ भी नहीं है। DCFA पाकिस्तान एक ख्वाब है। DCFA पाकिस्तान हमारे इस्तेहसाल की बुनियाद पे खुशहाल फार्मर खुशहाल पाकिस्तान के नारे के साथ वजूद में आई और उसकी बुनियाद रखने वाले तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और शाकिर उमर गुजर जो कुछ भी है अपने इन साथियों की बुनियाद पे, अपने इन दोस्तों की बुनियाद पे जो आज यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। और DCFA पाकिस्तान ने अब एक शाकिर उमर नहीं है आपके सामने, इन कंपनीज के सामने, इनके सामने एक बेहतरीन टीम मौजूद है जो इस डेल्फा को कामयाब बनाएगी। खड़े हो जाएं हारिस अली मिठानी प्लीज, खड़े हो जाएं आमिर उस्मान भाई, जब्बार कादरी भाई नमाज पढ़ने गए हैं, हबीबुल्लाह चौहान भाई खड़े हो जाएं प्लीज। और भी एक बहुत बड़ी टीम है पूरे मुल्क में हमारे 10 से ज़ायद ऑफिसेज हैं और बहुत तेजी से हम वर्किंग कर रहे हैं फार्मर्स को मुनज़्ज़म करने के लिए। फार्मर मुनज़्ज़म होगा तो ये इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। उनका इस्तेहसाल जो किया जा रहा है, आप सबको पता है कि ताज़ा दूध को नापैद करने के लिए साजिशें हो रही हैं। मेरी सेक्रेटरी साहब से अभी भी बात हुई है, तो हम सब उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। कंपनीज उसमें हमारा साथ देंगी। हम अपनी ब्रीड्स को, हम अपनी लोकल ब्रीड्स को भी बेहतर करेंगे। हम बाहर से भी इंपोर्ट करेंगे। हम ताज़ा दूध की शहर को, पाकिस्तान के शहरियों को फराहमी को यकीनी बनाएंगे। हम बीफ ब्रीड पे काम करेंगे, जिसके लिए आज ये मेरे कैटल फार्मर भाई सुरमा वाला, सूरती कैटल, आदम कैटल और फेयर ऑर्गेनिक कैटल, तमाम कैटल फार्मर हमारे साथ यहां मौजूद हैं जो इस डेल्फा का समझ लें एक चमकता हुआ चांद है, उसके सितारे हैं ये। तो सिंध पंजाब गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह इसमें हमारे साथ आएगी, सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसमें शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसमें भरपूर शिरकत करेंगे और जो कंपनी इसमें नहीं है वो भी इसमें इंशाल्लाह ताला आएंगी। क्या मैं उम्मीद करूं आप हमारे साथ हैं? क्या मैं उम्मीद करूं कि मजीद कैटल फार्मर्स को और इस डेल्फा को तक़वियत देने के लिए आप हमारे साथ आएंगे? तो बहुत शुक्रिया जनाब एजाज अली मैसर साहब, बहुत ममनून हूं मैं आपका, बहुत ममनून हूं डॉक्टर नज़ीर करोड़ों का, बहुत ममनून हूं डॉक्टर जमील शेख साहब का, बहुत ममनून हूं जमील मेमन साहब का, और मेरी वो टीम जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, उसके लिए तालियां बजाएं आप सब। और आने वाले मेहमानाने गिरामी के लिए मैं बहुत ममनून हूँ आप सबका कि इस तकरीब में मेरे मीडिया के साथियों ने भी सबने शिरकत की। उम्मीद करता हूँ कि इसे भरपूर कवरेज मिलेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कराची में सॉफ्ट लॉन्च आज मुकम्मल हुआ। एजाज अली महसर जो सेक्रेटरी हैं सिंध लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट के, वो यहाँ मेहमान खुसूसी थे। कई इम्पॉर्टेंट शख्सियात ने यहाँ पर शिरकत की। फिर सबसे बड़ी चीज़, फार्मर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि अगर डेल्फा की बात की जाती है तो फार्मर्स का अपना एक्सपो डेल्फा एक्सपो, जिसे बदर एक्सपो सॉल्यूशंस मुल्क की लीडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और उनके साथ साथ DCFA पाकिस्तान मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कराची में सॉफ्ट लॉन्च मुकम्मल हुआ, सारी डिटेल यहाँ के लोगों को बता दी गई। अब 17 मार्च को लाहौर में होगा इसका सेकंड सॉफ्ट लॉन्च, क्योंकि पूरे मुल्क को इसमें शामिल किया गया है। पूरा मुल्क ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल इदारे भी आकर जो है इस डेल्फा का हिस्सा होंगे। तो फिर यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।
फार्मर का अपना एक्सपो डेल्फा एक्सपो, फार्मर का अपना एक्सपो डेल्फा एक्सपो, फार्मर का अपना एक्सपो डेल्फा एक्सपो, फार्मर का अपना एक्सपो डेल्फा एक्सपो।